Hello students, hope you all are doing good. Today we are starting a chapter that name is The Land of Dense Forest, Congo. Now, the Democratic Republic of the Congo. The regions which lie on both sides of the equator is called the equatorial region. An important country in this region is the Democratic Republic of Congo, which was earlier known as Zaire. Zaire is truly the heart of Africa. It is the third largest country in Africa and Kinshasa is its capital city. Democratic Republic of the Congo, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो में हम पढ़ेंगे कि इक्वेटोरियल रीजन यानी इक्वेटर के आसपास का जो रीजन है वहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्री है जिसको पहले लोग जायरे के नाम से जानते थे, अब उसका नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो रख दिया है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्री है एंड द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका की जिसकी कैपिटल क्या है, किनशासा. ओके. Now, location and land. The Democratic Republic of Congo is located on the western side of Africa. It covers an area of about 23.5 lakh square kilometer. It is surrounded by 9 independent countries. 9 countries से surrounded है ये. First, to the north lie the Central African Republic and Sudan. Second, to the east lie Uganda, Rwanda, Burundi and Tanzania. And third, to the south lie Zambia and Angola. And the fourth, to the west lie the Republic of Congo. तो इस तरीके से 9 कंट्रीज से 9 इंडिपेंडेंट कंट्रीज से ये सराउंडेड है. A major part of the Democratic Republic of Congo lies in the basin of Zaire River or the Congo River. Major part जो है कोंगो का वो कहाँ है, बेसिन ऑफ जायरे रिवर जिसको कोंगो रिवर के नाम से जानते हैं उसके आसपास का एरिया है. This river basin is a vast low-lying area surrounded by mountains and plateaus. The Ruwenzori Mountains are towards the northeast. Mount Margherita is the highest peak in these mountains. River Congo is the second longest river in Africa after Nile. It is popularly known as the Highway of Central Africa. And the country has 4 major lakes: Albert, Edward, Kivu and Tanganyika. Okay, now come to the climate. Climate कैसा है यहाँ का? Climate is hot and wet throughout the year. The mornings are usually pleasant with bright sunshine. During the noon, the temperature rises with unbearable heat. जैसे जैसे सुबह से दोपहर होती जाती है यहाँ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है और अनबियरेबल हीट हो जाती है जिसको सहन नहीं कर पाते. In the afternoon, the sky is often covered with clouds followed by heavy rain in the evening. इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है जिसके कारण ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और पूरा स्काई बादलों से भर जाता है और रेनफॉल हो जाती है. The nights are quite cool and comfortable. Due to the mountains to the east and south east of Congo, the climate is moderate. लेकिन ईस्ट में ईस्ट में माउंटेन होने के कारण साउथ ईस्ट ऑफ कोंगो है वो फिर भी मॉडरेट क्लाइमेट है वहाँ का. लेकिन अगर हम मेन कोंगो की बात करें तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा हॉट एंड वेट है. ओके, कम टू द वेजिटेशन. Most of the Democratic Republic of Congo is covered with rainforest. Most of these trees are tall and form a canopy preventing sunlight from reaching the ground. यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होती है, इसीलिए यहाँ पर जंगल मिलते हैं आपको, रेन फॉरेस्ट आपको मिलेंगे और पेड़ इतने लंबे होते हैं कि वो आपस में जुड़कर कनोपी बना लेते हैं और सनलाइट भी अंदर एंटर नहीं कर पाती. These forests remain green throughout the year and are thus called evergreen forest. और यहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती है, नए वेजिटेशन बनती रहती है, इसीलिए ये जो फॉरेस्ट हैं ये हमेशा ग्रीन रहते हैं, इसीलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं.
Southern Zaire has a savanna type of vegetation with tall grasses and few trees. The hardwood trees like mahogany and ebony provide raw material for many industries. Congo is sometimes called the heart of darkness. कई बार कोंगो को heart of darkness भी बोलते हैं. Okay? Next is wildlife. वाइल्ड लाइफ कैसी है यहाँ की? यहाँ पर रेन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इसीलिए यहाँ पर बहुत वाइड डाइवर्सिटी आप देखोगे वाइल्ड लाइफ की. एलिफेंट, गोरिल्लास, चिंपैंजी, मंकी, बैबून, राइनोसोरस, हिप्पोपोटेमस, स्नेक, पाइथन, क्रोकोडाइल, लायन, लेपर्ड, लायंस, जैब्रा, ये आप देखोगे बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको यहाँ पर मिलेंगे. और कुछ लेपर्ड, लायन, जैब्रा एंड वोल आपको सवाना में भी मिलेंगे. There are many types of birds and insects in the forest. Congo has such a wide variety of wildlife that it is called the natural zoo of the world. यहाँ पर इतनी ज़्यादा wide variety है wildlife की कि इसको कोंगो को कई बार natural zoo of the world के नाम से भी जाना जाता है. 5 of the country's national parks such as the Garumba and Kouzi-Biega, Slonga and Virunga National Parks and the Okapi Wildlife Reserve are listed as World Heritage Site. यहाँ पर जो कंट्री के नेशनल पार्क्स हैं इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी के नाम से भी लिस्ट किया गया है. नाउ एग्रीकल्चर. A good number of people in Zaire are engaged in agriculture. बहुत सारे लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं. मेन फूड क्या है यहाँ का? कसावा है जो कि एक शकरकंदी टाइप फ्रूट होता है. मेज एंड राइस इज ऑल्सो द स्टेपल फूड हेयर. Coffee, cocoa, rubber, cotton, tobacco, palm are also grown and exported. यहाँ पर ग्रो भी होते हैं कॉफ़ी, कोकोआ, रबर एंड कॉटन और उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं. कसावा एंड बनाना आर द मेन फूड क्रॉप्स. कसावा इज अ रूट क्रॉप एंड इज देयर स्टेपल फूड. कसावा रूट्स आर ड्राइड एंड पाउंडेड इनटू फ्लावर फॉर मेकिंग ब्रेड. उसका आटा बनाकर, कसावा को सुखाकर उसका आटा बनाकर रोटी बनाने के लिए काम आता है जायरे में. ओके. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक रिसोर्सेज. इकोनॉमिक रिसोर्सेज. The country is rich in minerals and metal resources. Metals like cobalt, manganese, tin, copper, cadmium, gold, silver, iron, coal, etc. are found in large reserve. यहाँ पर बहुत सारे मेटल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. एंड कतंगा इन सर्दन जायरे हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कॉपर. कतंगा एक जगह है सर्दन जायरे में जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कॉपर मिलता है. इट हैज़ सिग्निफिकेंट डिपॉजिट्स ऑफ tantalum which is used in the fabrication of electronic components of computers and mobile phones. Consumer goods such as shoes, textiles and beer are produced in Kinshasa and Lubumbashi. और यहाँ पर shoes, textile and beer के भी कुछ फैक्ट्रीज हैं किन्शासा एंड लुम्बाबाशी में. ओके. नाउ ट्रांसपोर्ट. द कंट्री हैज़ अ पुअर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हैं तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत पुअर है. वाटर ट्रांसपोर्ट यहाँ पर बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जायरे का. कोई रेलवे नेटवर्क नहीं है यहाँ पर, कोई रोड ट्रांसपोर्ट नहीं है. रिसेंटली कुछ रोड एंड रेलवे सम पार्ट ऑफ द कंट्री डेवलप हुए हैं पर वो मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं. एयर ट्रांसपोर्ट इज़ बिकमिंग पॉपुलर एंड मातादी इज़ द चीफ सी पोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट यहाँ पर फिर भी अवेलेबल है एंड मातादी इज़ द चीफ सी पोर्ट हेयर. ओके. कम टू द सिटीज़. About 30% of the total population lives in town and cities. Kinshasa is the capital and the largest city. Lubumbashi is the main city in the mineral-rich region. Other big cities are Kangna, Kishangi and Matadi. Next is people. The Bantu-speaking people, that is Negroes, constitute a large majority of the Congo population. निग्रो पीपल जिनको बांटू पीपल भी बोलते हैं, जो बांटू लैंग्वेज बोलते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इन लोगों की है. दे आर टॉल एंड
हैफ्टी विद डार्क स्किन, बहुत लंबे और डार्क स्किन के लोग होते हैं। ड्यू टू हॉट क्लाइमेट दे वियर लिमिटेड क्लॉथ्स, दे इंजॉय म्यूजिक एंड डांस, और बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट होता है यहाँ पर तो लिमिटेड कपड़े पहनते हैं लोग। ये लोग म्यूज़िक एंड डांस को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं। दे आर वेरी गुड हंटर्स, बहुत अच्छे शिकारी होते हैं ये। मोर देन 200 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन द कंट्री। French is the official language. There are 4 African languages spoken widely. यहाँ पर कोंगो में 200 से भी ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती हैं, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज। और इसके अलावा 4 अफ्रीकन लैंग्वेजेस भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बोली जाती हैं। दे आर स्वाहिली, किकोंगो, तिशिबा एंड लिंगाला। In the northern part, the people are short in height and are called Paijamis. They are nomads. और जो यहाँ का नर्दर्न पार्ट है, सर्दर्न पार्ट में तो बांटू पीपल हैं जो बहुत लॉन्ग होते हैं, निग्रोस पीपल, और नर्दर्न पार्ट में जो लोग हैं उनकी हाइट कम होती है जिनको पाइजमीज बोलते हैं। ये लोग नोमैड्स होते हैं, यानी हंटर गैदरर्स होते हैं। इनका कोई फिक्स होम नहीं होता, जंगलों में रहते हैं, खाने की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। Their huts are small and can protect their families from heavy rains. They are fond of honey. इनके जो हट्स होती हैं वो अपनी फैमिली के साथ उनमें रहते हैं जो उन्हें हैवी रेन से बचाती हैं, और ये शहद के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। क्रिश्चियनिटी इज़ द मेजर रिलीजन इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, और यहाँ कोंगो का मेन रिलीजन क्या है? क्रिश्चियनिटी। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।